That's right. If you aspire to appear for GATE, Navigate by Unacademy is just for you. It is the largest and the most competitive scholarship test for GATE aspirants. That's right. If you aspire to appear for GATE, Navigate by Unacademy is just for you. It is the largest and the most competitive scholarship test for GATE aspirants. मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं. वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस आ रही है? नहीं आ रही. वॉइस का तो देखना पड़ेगा. एक सेकेंड. वॉइस का प्रॉब्लम कुछ क्लियर? वॉइस इज क्लियर नाउ? अब आ गई है? ठीक है. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. सो मैं यही बता रहा था कि टुडे लाइक अगर मैं आज इस सेशन की बात करूं, सबको पहले वॉइस क्लियर, मैं सबकी एक बार चेक भी कर लूंगा तो ताकि सबको क्लियर रहे, ठीक है, बीच में ना कोई अटके. लेकिन मैं सबके लिए बता दूं कि यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. काफी लोग बता रहे हैं सही बात है. सारे मतलब इंडिया के सबसे बड़े लेजेंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इस समय इस प्लेटफॉर्म पे एक साथ मेरे इधर इस सेशन में आए हुए हैं. मतलब मैं स्टार्ट करूंगा विद द वेरी वेरी फेमस सर, Mr. Praveen Kulkarni sir. Sir, welcome to our beautiful channel of Just Get Mechanical. छोटी सी फैमिली है, काफी बच्चे बड़े. Thank you. और सारे बच्चे Thank you. जानना चाहते हैं कि सर अभी नेविगेट के बारे में तो मैं डिस्कस करूंगा, बिकॉज नेविगेट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट स्कॉलरशिप एग्जाम फॉर द गेट. जो गेट एस्पिरेंट्स हैं हर ब्रांच के लिए, उनके लिए काफी बड़ी स्कॉलरशिप लेके आया ताकि काफी लोग को बेनिफिट मिले. और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा सर. जैसे पैंडेमिक टाइम आया, इवन जैसे हम लोग को भी कोविड हुआ, हम लोग के भी दिमाग में कुछ ना कुछ तो फील आता ही है. तो बच्चे कैसे उस चीज को लेके, मतलब कैसे अपनी प्रिपरेशन और पैंडेमिक के बीच में जो बैलेंस है वो कैसे क्रिएट करें? First of all, welcome all. Thank you for giving me this opportunity. So hope you all are safe and fine. Please stay at home. And this is one of the best opportunities for you. So घर बैठो और prepare कर लेना. And we all are coming to your places. Though not physically, but virtually we are with you. So this Navigate examination, which is scheduled on 23rd of May. And it is one of the biggest scholarship tests ever. So you can avail this, and scholarships worth 5 crore. And you have a chance to have an interaction with Sonam Wangchuk. So you can sit at home, happily you can prepare, give your best, so work hard. And this is one of the best opportunities. The reason being, all of us and Unacademy mechanical team recently मेरे पास बहुत messages आए, and they said कि like Unacademy mechanical team, in fact complete Unacademy, but I'm very specific to mechanical because I'm just like थोड़ा biased to mechanical set, so it doesn't matter. So many told कि what a team Unacademy mechanical has. It's not just I'm praising कि मतलब you have been observing, so we all
something like experience, youth and all toppers, मतलब जो ES crack किए, GATE crack किए and single digit rankers all are with you. So we all have undergone through all these phases, मतलब how to prepare. So you have a best chance to prepare from these top educators. So please utilize this properly by staying at home. You can watch two lectures, maybe 2 hours, 4 hours. Then बाद में you can take tests, because Unacademy is giving you lots of tests. Like you have combat series, we have navigate. मतलब we all are coming with अभी master blaster series भी शुरू हो रहा है. So Unacademy has got not just मतलब only what I say theory or classroom, but we apart from that we also have very good tests. Over to you, Akash. Yes sir, thank you sir. मतलब ये बात बिल्कुल सर ने बहुत सही बोली है कि अगर हम की मैकेनिकल टीम देखें अनअकैडमी की, स्पेशली जो पैनल डिस्कशन के टाइम पे भी और यहाँ से यहाँ तक मैं देखता हूँ इसे, हमारे पास हर सब्जेक्ट के बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, सब सब्जेक्ट के, मतलब हर कोई किसी न किसी फील्ड में बहुत अच्छा है, किसी न किसी का एक सब्जेक्ट तो बहुत ही ज्यादा धांसू है, जिसके बाद मतलब आपको मुझे लगता है कि इंडिया में पढ़ने की जरूरत पड़ेगी. तो आपके पास इतना अच्छा मौका है कि आपको उसको यूटिलाइज करना चाहिए. सो आई एम गोइंग टू पास द सेम क्वेश्चन, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैंडेमिक इन प्रिपरेशन. बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये चीज, क्योंकि माइंड लेवल पे मतलब आपको अपने हिसाब से भी सोचना है कि यार अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, प्रिपरेशन जर्नी है, अब हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, पहले शायद नहीं होते थे, पहले शायद इतने ऑनलाइन चीजें अवेलेबल नहीं थी, पहले वो क्वालिटी भी अवेलेबल थी, लेकिन अब वो क्वालिटी भी है, और वो आप प्रिपरेशन अगर ढंग से स्ट्रैटेजी रखते हो, सारी स्ट्रैटेजी सही रखते हो, तो अब आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से. बाकी नेविगेट के बारे में तो बताएंगे. तो मैं अब चलता हूँ नेक्स्ट. मेरे पास 2 और फैकल्टी बहुत बड़े लेजेंड, गिल सर एंड गौरव बाबू सर, दोनों अलग अलग फील्ड के, दोनों अलग अलग एक्सपर्ट हैं. तो दोनों के सब्जेक्ट वाइज भी मैं इनसे राय लूंगा कि आपके अपने अपने सब्जेक्ट में क्या क्या राय रहेगी. प्लस पैंडेमिक एंड प्रिपरेशन, ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा. जस्ट ओवर टू यू गिल सर. Thank you, Akash sir, for giving me this opportunity. First of all, आप सब लोग सुरक्षित रहें, सेफ रहें, क्योंकि जैसे हम लोग देख रहे हैं पैंडेमिक फिर तेजी से फैल रहा है सेकेंड वेव में, एंड सेकेंड वेव ज्यादा डेंजरस है कंपेयर टू फर्स्ट वेव से. सो फिलहाल हेल्थ सबसे पहला प्रायोरिटी है, तो आप लोग सब सेफ रहें और कोविड से बचे रहें. तो इस जैसे कि आकाश सर बता रहे थे, कुलकर्णी सर बता रहे थे कि इस पैंडेमिक के सिचुएशन में, ये सिचुएशन जो पैंडेमिक का सिचुएशन है, एटलीस्ट 2 मंथ्स तक तो ये कंट्रोल में नहीं होने वाला है, और उसके बाद भी अगर ये 2 मंथ्स में नॉर्मल होता है, तो उसके बाद भी ऐसा सिचुएशन नहीं बनेगा कि आप अगले 2-3 महीने तक घर से बाहर निकल पाए, क्योंकि अगेन यूजुअली लोग ऑफलाइन क्लासेस के लिए दिल्ली या हैदराबाद या ऐसे बड़े बड़े सिटीज में जाते हैं, और वहाँ पैंडेमिक से और भी ज्यादा बुरा हाल है. सो आई डोंट थिंक कि नेक्स्ट 5-6 मंथ्स में कोई ऐसा क्लासेस वगैरह, ऑफलाइन क्लासेस वगैरह खुलने का कोई सीन अभी दिखता है करंट सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए. और साथ ही साथ अभी तो अनअकैडमी पे ऑलमोस्ट बड़े बड़े फैकल्टीज अक्रॉस द इंडिया ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं. तो आई थिंक कि स्टूडेंट को इस चीज का एडवांटेज लेना चाहिए और अपनी प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट करनी चाहिए, बिकॉज कुछ ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिनका एक माइंड सेटअप रहता है कि हम ऑफलाइन क्लासेस के लिए जाएंगे, लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन बन रहा है कि नेक्स्ट 5-6 मंथ्स ऑलमोस्ट आप ये ईयर ही चला जाएगा, ऑफलाइन क्लासेस मुझे नहीं लगता है खुलेगा. सो ऑनलाइन, और दूसरी चीज है इस सिचुएशन में आपके पास बेनिफिट भी है, आप घर में बैठ के क्लास कर सकते हैं, जब चाहे तब क्लास कर सकते हैं, मॉर्निंग में चाहे मॉर्निंग में क्लास कर सकते हैं, इवनिंग में आप चाहे रिकॉर्डर देख सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं. बेस्ट फैकल्टी ऑलमोस्ट जो थ्रू आउट इंडिया है वो अनअकैडमी के पास है. तो मुझे लगता है कि जो एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा देर नहीं करना चाहिए, अपनी प्रिपरेशन को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना चाहिए. ओवर टू यू आकाश सर. बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली गिल सर ने कि अब एक तो प्रिपरेशन का टाइम बहुत लेट मत करो, मतलब बहुत ज्यादा टाइम मत लगाओ कि यार तब करेंगे. जितना आप डिले करते जाओगे उतना आपके वो प्रेशर बढ़ता जाएगा. सो गौरव बाबू सर आपके पास चलते हैं. काफी बच्चे तो आपको रॉकी भाई बोल रहे हैं, लुक भी आपका thank you Akash sir for giving me this opportunity, and I think same question मुझसे भी है. So I welcome you all in this session, my dear students. मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट्स को पढ़ता भी जा रहा हूँ. तो सबसे पहले तो दोस्तों यही है कि पेंडेमिक, इसमें बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है. तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा आपसे कि आप सबसे पहले तो सेफ रहें.
अपने आप को बचाएं पहले, क्योंकि बेटा जान है तो जहान है। सबसे पहला तो मेरा यही आप लोग के सबके लिए सजेशन यही है। दूसरा, ये बचने के बाद अब हम दो तरह से चीजों को सोच सकते हैं। एक तो ये कि हम हाथ पाथ रख के बैठे रहें कि चलो यार पेंडेमिक खत्म होगा, बाद में तैयारी करेंगे। तब तक क्या होगा, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे। तो थिंग इज दैट, दो तरह के बंदे होते हैं, एक होते हैं डिसीजन लेने वाले, तो डिसीजन लेने वाले बनिए। नो डाउट पेंडेमिक है, नेगेटिविटी भी आ रही है, सब कुछ है, बट हमें अपना करियर भी बनाना है। सो मेरा सबसे बेहतरीन सजेशन अब यही आप सबके लिए कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि पैनल में अभी हम 4 लोग हैं, और हमारे परम पूजनीय, मैं तो प्रवीण सर का बहुत बड़ा मतलब फैन हूँ, क्योंकि सबसे सीनियर हमारे अनअकैडमी वही है। तो कैन यू इमेजिन, अभी मैं 4 फैकल्टीज की बात करूँ, आकाश सर की, गिल सर की, प्रवीण सर की और मैं अकेले की, तो शायद हम जैसे भी सर ने बात की कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट से हम लोग बात करेंगे, तो कैन यू इमेजिन कि हम सब अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं और हमारे बहुत सारे फ्री कंटेंट्स भी आपके लिए हैं। आप जाके देखिए। जैसे आकाश सर की बात करूं, उनका एक स्पेसिफिक फील्ड है कि थर्मल वाली फील्ड को देखते हैं, गिल सर भी देखते हैं, प्रवीण सर भी देखते हैं, मैकेनिक्स वाली फील्ड से रहता है। तो इतना सारा कुछ कंटेंट आपको मिलने वाला है। आप चाहो तो इतना कुछ ग्रैस्प कर सकते हो कि आप ऐसा निकाल पाओ। तो दोस्तों बात यह है कि जैसे गिल सर ने भी बोला कि ऑफलाइन चालू नहीं होने वाला है, बिल्कुल ट्रू है। अभी आने वाले समय मुझे नहीं लगता, गिल सर, मैं तो मुझे लगता है शायद दिसंबर तक भी ना निकल जाए सर भी, क्योंकि जो हम लास्ट ईयर की स्थिति को देखें दिसंबर तो हो जाएगा। तो बेटर ये है कि अब पेपर तो पोस्टपोन करेंगे ना, आईटी वाले इस चीज में बड़े खतरनाक होते हैं, वो कोशिश करेंगे कि फरवरी में ही हो। तो आपको उनके लिए तैयार होना है, आपको अपने समय को वेस्ट नहीं करना है, इस पेंडेमिक का फायदा उठाना है। घर से कहीं जाना नहीं है दोस्तों, घर पे बैठे क्लासेस मिल रही है, समय आपका बच रहा है, बेहतरीन एजुकेटर है अक्रॉस द कंट्री, जो टॉप एजुकेटर हैं वो दोस्तों, मुझे नहीं पता बाकी सेगमेंट्स में क्या हाल है, बट हाँ गेट और ईएससी में तो बेस्ट है यही, ठीक है। तो वो आपको बिल्कुल मिलने वाला है खतरनाक लेवल पर, और मैकेनिकल में तो एक से तगड़े फैकल्टी हमारे पैनल में है, मतलब बिल्कुल इसमें दो राय की बात नहीं है। तो बस मेरा सजेशन ये दोस्तों, देखिए पेंडेमिक में एक फायदा और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे अभी हम लोग नेविगेट करवा रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने नौकरियां खोदी हैं या नौकरियां बंद पड़ी हैं, पैसे नहीं हो पा रहे हैं। इस चीज को सोचते हुए अनअकैडमी ने एक स्टेप लिया है। देखिए अभी तक कॉम्बैट होता था, वो आगे भी होगा। कॉम्बैट में जो प्राइज होते थे वो सारे सेगमेंट में डिवाइड होते थे, आईएएस में डिवाइड होता था, रेलवे में डिवाइड होता था। यहाँ इस बार 5 करोड़ की जो स्कॉलरशिप है वो केवल और केवल गेट के लिए है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है, ये केवल गेट और गेट के लिए है। तो इसलिए हम लोग खुद चाहते हैं कि बच्चा आगे बढ़े। तो इस चीज को देखते हुए दोस्तों हम लोगों ने ये प्लान किया कि चलो एक ऐसा स्कॉलरशिप लाते हैं जिसमें गरीब बच्चा भी अटेम्प्ट करे तो उसको कुछ फायदा हो जाए, वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करे, क्योंकि पेंडेमिक में बहुत लोगों ने अपनी जॉब्स खोई हैं दोस्तों, है ना। तो इस चीज का फायदा उठाइए, दिल से इसको दीजिए पेपर को। डेफिनेटली आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो हमारी टीम आपके साथ है, और डेफिनेटली हम बहुत आगे जाने वाले हैं। तो बस इतना ही बोलूंगा। ओवर टू यू आकाश सर। थैंक यू गौरव सर। मतलब ये चीज बिल्कुल सही बोली गौरव सर ने कि पैंडेमिक मतलब सभी ने, जितने मैं गिल सर की बात करूं, कुलकर्णी सर की बात करूं या गौरव बाबू सर की बात करूं, सबने एक चीज बहुत अच्छी बोली है। सबसे पहली चीज क्या है, आपकी सेफ्टी, हमारी सेफ्टी। शायद हम लोग को भी कोविड हुआ है, मेरे को भी हुआ था, कुलकर्णी सर को भी हुआ था, गिल को भी है, और गौरव बाबू सर आपको भी कोविड हुआ था। तो हमने एक चीज सबसे पहले नोटिस करी है कि अपनी सेफ्टी आप बहुत ध्यान रखें, बिकॉज ये वायरस बहुत तगड़ा स्प्रेड हो रहा है। और इस टाइम पे अगर आप जितना अपनी हेल्थ और अपने नियर बाई हेल्थ की, मतलब जितने भी आपके लव वंस हैं, जो आपके क्लोज हैं, उन सबकी आप हेल्थ पे ज्यादा मतलब फोकस करिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये पढ़ने का टाइम भी है, मतलब मैं पैरेलली बोलूं तो ये पढ़ने का टाइम भी है, बिकॉज कुछ करने का भी टाइम है। अब अगर मैं नेविगेट के सिलेबस की बात करूं, नेविगेट एग्जाम हो रहा है सर, इसके अंदर जो बेसिकली इनका पैटर्न है 45 क्वेश्चन का पैटर्न है जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, और जो क्वेश्चंस हैं दे आर मिक्स ऑफ इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड और बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। बेसिक मतलब जो सॉम है, थर्मो है, मटेरियल साइंस है, प्रोडक्शन के कुछ कुछ पार्ट्स है। तो वो ऐसे सिलेबस, ऐसे पार्ट्स हैं जिनको आप ये कह सकते हो कि यस करेक्ट, जो आप ये देख रहे हो अभी स्क्रीन पे, सो यू कैन सी दैट एक ऐसा पार्ट है, आप ये कह सकते हो कि ये आपने कहीं सेकंड, अपने थर्ड सेकंड ईयर में आपने पढ़ा है, तो यू कैन ऑल्सो रिलेट कि भाई ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम ये नहीं निकाल सकते, यू कैन एक्चुअली क्लियर दिस पार्ट। आप देख सकते हो सिलेबस में क्या क्या लिखा है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्मोडायनामिक्स, इंजीनियरिंग बेसिक मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग मटेरियल। तो मतलब ये ऐसा सिलेबस है जो ऐसा नहीं कि शायद फोर्थ ईयर के जो कई सारे टॉपिक्स हैं वो उन्होंने नहीं रखे हैं, तो बड़ा अच्छी तरह से मैकेनिकल का सिलेबस बनाया है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आपने थोड़ी प्रिपरेशन भी करी है, कभी कोई फ्री लेक्चर भी देखें, यूट्यूब पे आप देख सकते हो, अगर आपके कोई डाउट है, हम सब थोड़े अवेलेबल जरूर मिलेंगे हर टॉपिक पे, आप जरूर उसको एक्सप्लोर करो एंड गिव योर बेस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन, सो दैट यू विल गेट द मैक्सिमम स्कॉलरशिप जो हम
इसके थ्रू हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो जस्ट रिमेंबर कि आपका एग्जाम है 23 मई को, ठीक है, फ्रॉम 11 to 12:30, मस्ट एनरोल इट, ठीक है, इसके लिए एनरोल जरूर करें और अपन मतलब इस एग्जाम को अपने बेस्ट से बेस्ट प्रिपेयर करके दें सो दैट आपको बेनिफिट हो सबसे ज्यादा। यस यस यस, यू कैन क्लियर। काफी लोग बोल रहे हैं कि हम क्लियर कर सकते हैं, कोई भी क्लियर कर सकते हैं, बस वो बेसिक सब्जेक्ट थोड़ा ध्यान रखना है। जहां तक मुझे लग रहा है कि सेकंड ईयर तक के सिलेबस तो है इसमें, तो थर्ड ईयर का भी थोड़ा बहुत है, मतलब फिफ्थ सेम का, फिफ्थ सेम सिक्स सेम के भी है। हाँ, लास्ट ईयर के नहीं है, तो मतलब ये कह सकते हो कि सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर वाले आराम से दे सकते हो जो पास आउट सके। सर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अब काफी बच्चों को डाउट लगता है कि मैं कहीं लेट तो नहीं हो गया गेट की प्रिपरेशन के लिए, ये महीना कौन सा आ गया, तो मई का एंड चल रहा है, ये फिर तो जून आ जाएगा, जैसे जुलाई आ जाएगा मतलब आपको क्या लगता है कि ये टाइम परफेक्ट टाइम है प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, कोई लेट हो गया? Actually, generally we start in the month of March or April, generally करते हैं. So in fact अगर आप लेट बोल रहे हैं तो we can compensate it. Say अभी तो those who are going to college, तो उनको तो कॉलेज जाना ही नहीं है, so they are at home. So yesterday I had a talk with 2 to 3 students. They were saying कि sir कॉलेज में तो केवल attendance है, तो हम we can prepare sincerely. So even sitting at home, if you can spend 10 to 12 hours a day, I repeat, 10 to 12 hours a day, and you are left with around 6 months, I think it is more than enough. If you use your time effectively, I think it's not late. So daily 10 से 12 घंटे वो भी effective study, and 6 months if you prepare, it is I personally feel that because we too cleared the examination, so this is more than enough. But lekin you have to be very very serious. So after the completion of each subject you take test usi subject ka. I'm not talking about overall grand test. So if you complete, let us say for example production, you take production test. If you complete fluid mechanics, then you take fluid mechanics test, and if possible prepare your own short notes, so that will help you in revision. So I think it is not late Akash sir. So definitely, लेकिन अगर आप इसको अभी लेट नहीं बोल रहे सर, तो जून जाएंगे, जुलाई जाएंगे, that will be late. तो अभी से काउंट कर रहा हूं मैं, अभी से, so 10 to 12 hours and 6 months अभी से, then it is absolutely fine. Because last 1 month you need to give for revision. Akash sir. Absolutely sir, बिल्कुल करेक्ट बोला है। आप जितना मतलब डिले करते जाएंगे कि चलो ये अभी तो लेट नहीं हुआ, अगले महीने कर लेंगे, उसके अगले महीने, ऐसे करते करते ठंड आ जाएगी, मतलब विंटर आ जाएगी और फिर नहीं प्रिपरेशन होती। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये टाइम परफेक्ट है, आप लेट नहीं हुए, हर चीज का कंपनसेशन अवेलेबल है, लेकिन कंपनसेशन एक लेवल तक अवेलेबल है। अब आप इसी को मतलब टहलते टहलते अगर आप अक्टूबर, फिर आफ्टर अक्टूबर मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा चांस है, फिर आप कितना कवर कर लोगे, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी गेट के टाइम, जब भी गेट आता है तो ये पैंडेमिक फिर से थोड़ा कम हो जाता है और गेट सही टाइम पे होता है हमेशा, तो इसलिए मुझे लगता है कि प्रिपरेशन करते रहना चाहिए, नहीं तो हमेशा जैसे आपने देखा है सारे एग्जाम डिले हुए, अभी शायद इंजीनियरिंग सर्विस भी डिले हो जाएगा, लेकिन गेट ने पता नहीं क्या डेट रखी हो अपनी फैब में कि वो हो ही जाता है तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा गिल सर की तरफ। गिल सर, एक बेहतरीन क्वेश्चन, अभी ये मतलब ये क्वेश्चन हम कई बार पूछते हैं, लेकिन ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाउ टू प्रिपेयर इफेक्टिवली, मतलब प्रिपरेशन इफेक्टिवली कैसे करी जाए? क्या मैं 2 घंटे का स्क्रीन टाइम रखूं अकेडमी में, 3? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये मैं चाहता हूँ कि हम सब एक एक करके बताएं अगर अच्छा हो सके तो, क्योंकि कई बच्चे ऐसे आपके भी स्टूडेंट रहते हैं, मेरे भी रहते हैं, और दोनों पढ़ते रहते, बोलते सर उनका चल रहा है 2 घंटे इनका पढ़ ले, 2 घंटे इनका पढ़ ले, अरे 2 घंटे सर 6 घंटे तो स्क्रीन ही देखे जा रहा हूँ, मेरी आंखें खराब हो रही हैं। पर ऐसा नहीं है, एक बैलेंस स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो इस पे गिल सर आपका क्या कहना है कि कितने घंटे स्क्रीन टाइम रखे बंदा, कितने घंटे अपना मतलब अपनी सेल्फ स्टडी पे लगाए, टेस्ट सीरीज कब देना चाहिए, कब स्टार्ट कर दे, मतलब इन शॉर्ट कि आप क्या बता सकते हैं? आकाश सर, जो मेरा एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के साथ रहा है, जब स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन लेता है और प्लस पे एनरोल करता है तो देखता है हर टीचर 1-2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, और लगभग वो सोचता है कि पहले वो सारे कोर्स स्टार्ट कर लेता है, और 3-4 कोर्स स्टार्ट करके फिर वो जब 5 शुरुआत में उसे बहुत जोश होता है, उसे लगता है मैं 8 घंटे 10 घंटे करूंगा, फिर 5-6 दिन 1 हफ्ते करता है, उसका जोश थोड़ा डाउन होता है, फिर 1-2 कोर्स में को हटाता है, फिर ऐसे करके करके उसको एटलीस्ट 1 महीने बाद उसका पूरा सेटिंग बैठता है कि मैं कितना देर पढ़ पाऊं। तो सबसे पहली चीज जो है, जो भी एस्पिरेंट प्लस ले रहा है उसको एक चीज स्पेसिफाई करना है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट
पढ़ना है। तो फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर इन सेकंड ईयर थर्ड ईयर, मुझे ऐसा लगता है कि आपको 2 सब्जेक्ट से ज्यादा पैरेलल नहीं करना चाहिए सेकंड ईयर। अगर आप सेकंड ईयर में तो आप एक सब्जेक्ट भी लेके चल सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं पूछता हूँ वो सेकंड ईयर में ही प्लस ज्वाइन करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं, सर सिलेबस कब कंप्लीट करेंगे? तो सेकंड ईयर में आपके लिए ये क्वेश्चन नहीं है कि आप सिलेबस कब कंप्लीट करेंगे, 6 महीने में, 8 महीने में। तो सबसे पहला मेरा यही सब लोगों, सारे स्टूडेंट को मैं यही कहना चाहता हूँ, स्पेशली जो पास आउट होते हैं, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स आते हैं जो एक बार ऑलरेडी कहीं तैयारी कर चुके हैं, उनको आइडिया रहता है, बट जो एस्पिरेंट नए हैं वो यही करते हैं, एक साथ 5-6 कोर्स में एनरोल कर लेते हैं। उनको लगता है कि कुलकर्णी सर का भी सब्जेक्ट चल रहा है उसमें भी एनरोल कर लो, त्यागी सर का चल रहा है उसमें भी कर लो, गौरव सर के में भी कर लो, सबका एक एक कोर्स कर लो, और वो फिर सबको जाके कंप्लेन करेंगे, कुलकर्णी सर को बोलेंगे गिल सर का चल रहा है, गिल सर को बोलेंगे कुलकर्णी सर का चल रहा है, और फिर पूरा मैशअप हो जाता है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आप जैसे ही आप इनरोल करते हो प्लस में, कुछ एक बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप आइडेंटिफाई करो, उनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आप पकड़ो और 2 सब्जेक्ट के साथ आप कैरी आउट करो। अच्छा, इसमें ऐसा भी है कि आप बहुत कम स्क्रीन टाइम रखते हैं तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, तो मिनिमम 2 सब्जेक्ट तो मतलब 4 घंटे तो आपको करना है। उसके बाद एक बार आपका सेटिंग, आपका मतलब इस चीज पे भी स्टूडेंट का डिपेंड करता है। मैं एक चीज और बिगिनिंग में स्पेसिफाई करूंगा स्टूडेंट को कि ऐसा दूसरे को देख के अपना स्क्रीन टाइम डिसाइड नहीं करना। हो सकता है कोई स्टूडेंट बहुत शार्प हो और वो 3 क्लासेस को भी मैचअप कर रहा हो, राइट? तो आप मिनिमम 2 सब्जेक्ट तो आपको लेके चले, उसके बाद आप अपना स्पीड देखें कि आप सब्जेक्ट को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो स्पेशली आप सिलेबस कंप्लीशन की सिवाय आप जब तैयार करें तो आप जिस भी कोर्स में एनरोल करें, जिस भी कोर्स में आप एनरोल करें, वो कोर्स को डेडिकेटली अच्छे से करें। और बहुत 2 मैक्सिमम जो रिपीटर है वो 3 में चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, शुरुआत आपको 2 सब्जेक्ट से ही करना चाहिए। और 2 सब्जेक्ट के साथ अगर आप चल रहे हो तो प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आप क्लास अटेंड करो, उसके बाद जैसे ही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा तो आप जो कंसर्न टीचर है, फैकल्टीज है, वो अपना क्वेश्चंस वगैरह देते हैं या वो रिकमेंड करते हैं, कुछ मटेरियल रिकमेंड करते हैं, आप उसको सॉल्व करो और टेस्ट करो, राइट? और प्रॉपर आप एक रिवीजन प्लान बना के रखो, लाइक हाफ एन आवर 1 आवर डेली रिवीजन करना है, खुद का प्रैक्टिस करना है। अगेन ये सारी चीजें वैरी करती है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई एस्पिरेंट डेडिकेटली प्रिपेयर कर रहा है तो उसे 7 to 8 आवर्स का जो है अपना शेड्यूल बनाना चाहिए, जिसमें 4 to 5 आवर्स का जो स्क्रीन टाइम है आपके लिए वैरी करता है, जैसे भी आप चाहो, और 2 to 3 आवर्स सेल्फ स्टडी कंपलसरी है, अदरवाइज फिर आपका स्क्रीन टाइम भी काम नहीं आएगा। अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे तो शुरुआत में आप जो शुरुआत का 1 महीना ना, उसमें आप सिलेबस कंप्लीशन वगैरह कुछ मत करें, आप खुद को सिस्टम में डालें। जैसे बहुत लोग इतना ऑनलाइन क्लासेस नहीं करते हैं, जैसे कुछ लोगों को लगता है कि रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है और मैं 2-2, 3-3, 4-4 क्लास कर सकता हूँ, तो क्या होगा, थोड़े दिन बाद आपको पता लगेगा कि आपको आंखों में प्रॉब्लम आने लगी है। तो 1 महीना आपको चाहिए पूरा सिस्टम को समझने के लिए, आपकी बॉडी के हिसाब से कि आप कितना क्लासेस कर सकते हो, 2 क्लास कर सकते हो या 3 भी कर सकते हो। और दूसरी चीज एक हमेशा ध्यान रखें कि जो भी टीचर पढ़ा रहा है, लाइक अगर मेरा कोई सब्जेक्ट चल रहा है, कुलकर्णी सर का सब्जेक्ट चल रहा है, तो आप हमेशा ये ध्यान रखो, ऑलमोस्ट हर टीचर एक सब्जेक्ट को 1 साल में 2 बार तो जरूर पढ़ाता है। आई थिंक कि सब लोग इससे एग्री होंगे। तो अगर मान लो जैसे सब्जेक्ट क्लास भी हो रहा है तो उससे कोई इश्यू नहीं है। वो आप अगर कुलकर्णी सर अभी कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हो तो बाद में भी पढ़ाएंगे। अगर मैं कोई सब्जेक्ट अभी पढ़ा रहा हूँ, आप नहीं कर पा रहे तो बाद में भी आएगा, तब कर लेंगे। सेम चीज किसी भी ऐसे हर फैकल्टी के लिए। तो आप एक सिंपल सा एक काम करो, आप 2-3 सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करके उनके साथ धीरे धीरे स्टार्ट करो। तो वही प्रोसेस है कि आपको क्लास करना है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और फिर आपको टेस्ट वगैरह देना है, यही प्रोसेस कंटिन्यू करना है। तो जो नए बच्चे आते हैं उनको लगता है कि कोई बहुत नई स्ट्रैटेजी, ऐसी कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं, वही सिंपल चीजें हैं, वो आपको फॉलो करना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और दूसरी चीज है कि जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले हैं, अभी आप प्लीज रैंक और सिंगल डिजिट रैंक और डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट के बारे में कुछ मत सोचें। आपको जो टीचर पढ़ा रहा है आप सिर्फ उतने में पढ़ाई पे ध्यान दें, तो आप इससे ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। आई होप त्यागी सर मैंने आपका क्वेश्चन आंसर कर दिया। सर की बातें एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, ज्यादा घुमाना नहीं, कुछ बोलना नहीं। बिल्कुल सही बात बोली है गिल सर ने कि एक तो ना पैसा छूटने के चक्कर में मत रहो कि एक बार फीस दे दे, पूरा एकदम 8-8 घंटे बैठा दिया फैकल्टियों को। नहीं, आपको अपना एक अच्छा शेड्यूल बनाना है, बहुत जरूरी है ये। और आपको सिलेक्ट करने अपनी फैकल्टीज को, और बिल्कुल सर ने सही बात बोली है, वो दोबारा होता है। ट्राई करो कि लाइव लो, लाइव का मजा अलग है। मेरे ख्याल से मुझे भी लगता है सर, लाइव का मजा अलग है। अगर आप लाइव किसी फैकल्टी को एक पूरा थ्रू आउट सेशन फॉलो करते हो तो उसमें क्या होता है, कई बार फैकल्टी ना कुछ क्वेश्चंस भी लगाता है स्पेशल क्लासेस में,
तो वो उसी सिंक में रहते हैं। या कभी यूट्यूब पे एक छोटा सेशन ले लिया जो पढ़ा रहा है उसी से रिलेटेड थोड़ा सा हैवी, तो बहुत सिंक हो जाता है, तो काफी अच्छा रहता है। या फिर उसने कोई क्वेश्चंस बांटे कि ये करने और कल मुझे दिखाने, तो इस चीज के लिए आपको कहीं ना कहीं लाइव करना ज्यादा अच्छा रहता है कंपेयर टू रिकॉर्डेड। काफी लोग का इसमें मैंने देखा है कि रिकॉर्डेड 2x स्पीड पे देख लिया, ये कोई वो तो है नहीं कोई सीरीज की, इसे फटाफट देख लिया। इट्स अ सीरीज, मतलब सीरीज तो है, ये वेब सीरीज की तरह ही होता है हमारा पढ़ाना भी, बट ये कहते हैं कि काफी क्रिटिकल होता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि इसको इसकी भी एक रिस्पेक्ट है, वो आपको देनी पड़ेगी, तभी जाके आपके रिजल्ट्स कन्वर्ट होंगे। तो काफी अच्छा सर एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं, पढ़ा रहा है, तो लर्निंग एक प्रोसेस है। कोई टीचर आपको कोई पॉइंट बताता है तो उसको डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो अगर आप उसी पेज से लाइव करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा व्हेन कंपेयर टू रिकॉर्डेड करने को। अगर आपका ऐसा समस्या है कि आप लाइव आ ही नहीं सकते, देन दैट इज अ डिफरेंट इशू। लेकिन रिकॉर्डेड हमेशा सेकंड प्रेफरेंस होना चाहिए, लाइव हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए इफ पॉसिबल। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखो। आप लाइव में बहुत सारे लोग 2x स्पीड पे देखते हैं, बोलते हैं टीचर स्लो पढ़ा रहा है। 2x स्पीड पे देखते हैं ना, वो बाद में नोट्स अलग से बनाते हैं और उसमें 1.5 घंटा और वेस्ट करता है। तो जो लाइव में 2 घंटे में कर रहा है वो नोट्स भी बना रहा है साथ में। तो इनडायरेक्टली रिकॉर्डेड वाला जो स्टूडेंट है वो 2x पे तो देखता है, लेकिन वो 2 घंटे का लेक्चर 3 घंटे में कंप्लीट करता है। जो 1.5 घंटा अलग से नोट्स बनाता है उसको जोड़ता नहीं है बीच में। और मेरा तो यही कहना है कि रिदम बना के रखना चाहिए, रिदम सबसे इम्पोर्टेंट है। ये कोई भी एक्सपीड नहीं करनी चाहिए, जो फैकल्टी उसको कम से कम इतना एक्सपीरियंस है यहाँ पर सब, इवन कुलकर्णी सर तो मतलब गॉड है मेरे ख्याल से मैकेनिकल तो इतना एक्सपीरियंस है कि आप ये समझ सकते हो कि आपको एक लेवल रखना है। मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी स्पीड पे आप चला रहे हो, आपको एक रिदम बनाना है फैकल्टी के साथ, वो सिंक बनना जरूरी है। तो गौरव बाबू सर आपको कैसा लग रहा है? लैगिंग आ रहा है, लैग आ रहा है क्या? इससे मेरे में लैग आ रहा है क्या? पता नहीं, कुछ लैग बता रहे हैं, वो देखा जाएगा। चलो अब आप गौरव बाबू सर, सेम सिमिलर क्वेश्चन, प्रिपरेशन का एक ऐसा पार्ट जो आपको लगता है कि बच्चे को ध्यान देना चाहिए। कुलकर्णी सर और गिल सर ने बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स पहले बता दिए हैं। मैं बस में एक ऐड ऑन करना चाहूंगा छोटा सा, वो पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है और मुझे लगता है शायद बच्चों को उसको दिल से फॉलो करना चाहिए। एक सेंटेंस बोलना चाहूंगा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पेशली फॉर द गेट। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट टू लर्न, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट टू लर्न, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट टू लीव। क्या पढ़ना है ये जरूरी नहीं है, क्या नहीं पढ़ना है ये ज्यादा जरूरी है। तो एक प्रॉब्लम ये होती है, कई बार बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, इधर उधर भगते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। तो एक सर टर्म यूज करूंगा अपने ठेठ भाषा में, बोल रहा है कि भूल में लट मारना। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पढ़ाई तो करते हैं बट उनको ये पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है। कोचिंग की जरूरत क्यों पड़ी भाई? कॉलेज में ऐसा क्या कमी थी जी कोचिंग इमर्ज हुआ और हमें कोचिंग की जरूरत पड़ गई? तो शायद कुछ ऐसा ही था कि जो कोचिंग के अंदर फैकल्टीज होते हैं, जैसे भी हम 4 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो उस काम को करके बैठे हुए हैं, उस एग्जाम को क्रैक करके बैठे हुए हैं, गेट के एग्जाम पीएससी के, तो उनको पता है कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। तो एक सबसे बेसिक जरूरत ये है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अंट शंट चीजें लगाते हैं, और मैं लैंग्वेज में, दिस इज ट्रू, इधर उधर की चीजें ज्यादा लगाते हैं। सर अब जैसे मैं बताना चाहूंगा, मेरा स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा कि अभी जैसे आज मई के मंथ में हम लोग हैं और हमें गेट के बच्चों को बताना है, अभी जो हमारे लाइव लर्नर्स को देख रहे हैं, कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग ये है भैया, अर्जी फर्जी पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट ज्यादा होगा। अब वो अर्जी फर्जी चीज आपको बता कौन पाएगा? एक वो बंदा जो ऑलरेडी एग्जाम को क्रैक करके बैठा हुआ है, जैसे प्रवीण सर हैं, गिल सर हैं, मैं हूँ, सर हैं। तो हम लोग के पास उस चीज का एक्सपीरियंस है दोस्तों। मैं हमेशा अपने वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ कि भैया मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। आकाश सर भी थर्मल पढ़ा रहे हैं, प्रवीण सर भी थर्मल पढ़ा रहे हैं, गिल सर भी थर्मल पढ़ा रहे हैं, मैं भी प्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ, राजेश सर भी प्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं। हम सब अपने आप में सब बेस्ट हैं, सब अच्छे हैं। तो थिंग इज दैट, मेरा हमेशा एक कहना है कि मेरे पास कुछ है तो वो मेरा एक्सपीरियंस है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही बोलता है दोस्तों, जरूरी ये नहीं है कि क्या पढ़ना है, जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। और क्या नहीं पढ़ना है ये आपको आपका गुरु बताएगा, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। कई बार आकाश भाई आप भी शायद एग्री करोगे इस बात से कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आएंगे गेट में, जबरदस्ती बच्चा उसमें लगा हुआ है, 4 घंटे दे रहा है, पता है वो नहीं आने का। तो ये चीज समझना जरूरी है, इसीलिए नीड होती है दोस्तों एक गाइडलाइन। तो वही गाइडिंग प्रोग्राम दोस्तों हम लोग देते हैं आपको अनअकैडमी पे, या हम पहले ऑफलाइन पढ़ाते थे, तो अभी ऑफलाइन का तो नाम लेने बेकार है। तो दोस्तों बस यही कहना चाहूंगा, आप हम लोगों को फॉलो करिए। डेफिनेटली
हम सभी एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं। आकाश भाई को काफी बड़ा एक्सपीरियंस है, गिल सर को काफी बड़ा एक्सपीरियंस है, और प्रवीण सर तो मैं तो हमेशा हाथ जोड़ के बात करता हूँ सर से। तो इतने एक्सपीरियंस लोगों से जुड़ोगे यार तो क्या नहीं हो जाएगा। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आप सभी को। आप सभी लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ, मूवी देखी होगी नायक। नायक मूवी सबने देखी होगी, जिसमें अनिल कपूर था। उसका एक लास्ट सीन था जिसमें अमरीश पुरी अनिल कपूर से मिलने जाता है। अनिल कपूर सीएम बन चुका था, तो अमरीश पुरी जाके उससे बोलता है अनिल कपूर से कि मुझे राजनीति में 30 साल का एक्सपीरियंस है। तो अनिल कपूर उससे एक बात बोलता है कि तेरे साथ 1 साल से काम करते करते मेरा एक्सपीरियंस 31 साल का हो गया है। सेम थिंग आप लोगों के लिए मेरे बच्चों। अब हम लोग इतना एक्सपीरियंस ले लेके बैठे हैं, आप हमसे अगर 1-2 साल जुड़ के रहे ना बेटे, तो आपका एक्सपीरियंस हमारे बराबर का हो जाएगा। एटलीस्ट हम इतना आपको दे देंगे कि डेफिनेटली आप क्रैक कर पाओगे एग्जाम को। बिलीव रखना बहुत जरूरी है, बिलीव सिस्टम होना चाहिए दोस्तों आपके अंदर कि नहीं यार ये बंदा बोल रहा है, उसको फॉलो करना है, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे। सबसे जरूरी बिलीफ सिस्टम, बाकी तो स्ट्रेटजी बेटा डेली बनती है और वगैरह वगैरह सब कुछ है। एक गिल सर की बात बहुत अच्छी लगी मुझे, जो सबसे कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं प्लस के मेंबर भी आते हैं। अब भैया गौरव बाबू भी सोम पढ़ा रहा है, आकाश त्यागी भी सोम पढ़ा रहा है, गिल सर भी सोम पढ़ा रहे हैं, प्रवीण सर भी सोम पढ़ा रहे हैं, भैया सभी अच्छे हैं, किस पे जाऊं? तो वो क्या कर रहा है, सबको फर्क पड़ रहा है। अब नो डाउट किसी की इच्छा हो सकती नहीं प्रवीण सर पे ही पढ़ना है, किसी को गिल सर पे ही पढ़ना है, तो नो डाउट ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, ऑनलाइन की सबसे अच्छी बात यही है कि फॉर एग्जांपल कहीं क्लैशिंग हो रही है, छोड़ दो उसको, कहीं भाग नहीं रहा है वो, भागने से सिलेक्शन नहीं होगा, क्वालिटी जरूरी है। आप लोग क्या कर रहे हो, क्वांटिटी बढ़ाने के चक्कर में हो, क्वालिटी कहीं ना कहीं भूल जा रहे हो। तो गिल सर के पॉइंट को मेरा 100% समर्थन है कि एकदम से नहीं कुछ होगा बेटा, एकदम से मंजिल खड़ी नहीं होती है, टाइम लगता है उसमें। तो पेशेंस के साथ चीजों को करो, प्यार से करो, समझते हुए करो, डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली। एक चीज आकाश सर, एक चीज आपसे टाइम लूंगा, मैं इंटरप्ट करूंगा, सॉरी फॉर। नहीं एक पॉइंट लोग बोलते हैं, सर ने बोला कि सोम सब पढ़ा रहे हैं, किससे पढ़ूं? तो लोग इसको निगेटिव पॉइंट बताते हैं। ये निगेटिव पॉइंट नहीं है, ये पॉजिटिव पॉइंट है कि आपके पास एक सब्जेक्ट के 3 ऑप्शंस हैं। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओ, एक ही टीचर पढ़ाता है, और मैं गारंटी ले सकता हूँ इस दुनिया में एक टीचर से 100% बच्चा कभी खुश नहीं होता। कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा है, उसको कुछ परसेंट लोग लाइक करते हैं, कुछ लोग डिसलाइक करते हैं। वो परसेंटेज टीचर के हिसाब से ज्यादा हो सकता है। भाई मेरे केस में वो हो सकता है 80% हो, कुलकर्णी सर के केस में 90% हो, त्यागी सर के केस में और थोड़ा ज्यादा या कम हो। वो परसेंटेज वेरी कर सकता है, लेकिन हर टीचर को कुछ लोग लाइक करते हैं, कुछ लोग डिसलाइक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास ले रहा हूँ, आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप स्विच करके दूसरे का देख सकते हो, है ना? तो ये एक ऑप्शन है, जो आपको ऑप्शन बाहर नहीं मिलेगा। और एक एस्पिरेंट जो अच्छा एस्पिरेंट है, उसको इतना सूझबूझ होना चाहिए कि उसे किसे फॉलो करना है। वो 1-2 लेक्चर देख के ये चीज डिसाइड कर सकता है। सो इट्स एन ऑप्शन, इट्स नॉट एन कंफ्यूजन। आप 1-2 लेक्चर देख के किसी भी एजुकेटर को ये समझ सकते हो भाई इससे अपना फ्रीक्वेंसी मैच करेगा या नहीं करेगा। सो इट्स एन ऑप्शन। ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको एक टीचर से ज्यादा नहीं सिंक हो रहा है तो आप दूसरे को फॉलो कर सकते हो, दूसरे से नहीं हो रहा है तीसरे से कर सकते हो। आपका चॉइस है, आप किसी भी समय दूसरे एजुकेटर के साथ। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि वो सबको फॉलो कर रहे हैं। अगर आप सबको फॉलो करेंगे ना, तो फिर आप पूरे साल भर 100 ही पढ़ेंगे, और 100 पढ़ के 7 नंबर आ सकता है, 70 नहीं। तो आप हमेशा इस चीज को याद रखें कि ये आपके पास एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है अनअकैडमी का, जिसको लोग थोड़ा सा बोलते हैं हम कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज नहीं, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि अनअकैडमी आपको एक ऑल्टरनेटिव दे रहा है कि अगर आपको एक एक्स टीचर एक एक्स सब्जेक्ट में अच्छा नहीं लग रहा है तो आप टीचर चेंज कर सकते हो। लाइक थर्मल, हम तीनों लोग थर्मल पढ़ाते हैं, आकाश सर भी पढ़ाते हैं, कुलकर्णी सर भी पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ। अब कोई जरूरी थोड़ी ना है कि एफएम मुझे से पढ़ना है या कुलकर्णी सर से पढ़ना है या त्यागी सर से पढ़ना है। आप डिसाइड कर लो आपको जिससे पढ़ना है, आपके पास 3 ऑप्शन है। तो ये चीज है, ये इसको नेगेटिविटी ना ले, इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि आप यू हैव ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी टू स्विच योर एजुकेटर। अगर आपको ना पसंद आए, कोशिश करें ना करने का, अगर आपको ना पसंद आए तो। नहीं, वैसे आपने बहुत सही बात बोली है कि यहाँ पर बस आपको एक बार गुरु ढूंढ लेना है अपना, तो बस वही बहुत है। तो ये क्वेश्चन मैं सीधा कुलकर्णी सर पे एक डाल देता, सर गुरु कैसे ढूंढा जाए? प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। गुरु कैसे ढूंढा जाए, मतलब जैसे अभी इतने सारे ऑप्शन है अपने पास अनअकैडमी में, हाउ टू फाइंड मतलब करेक्ट गुरु किसी सब्जेक्ट के लिए? See, as Gil sir rightly said कि एक आदमी सबको पसंद नहीं आएगा। See, we are not ideal. वो तो आइडियल हाइपोथेटिकली होता है, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। सो डेफिनेटली सी व्हाट आई पर्सनली फील इज, आप कोई भी एजुकेटर के क्लासेस देखना, 1-2 क्लासेस देख लेना। अगर फ्रीक्वेंसी मैच हो रहा है यू कंटिन्यू, अदरवाइज यू हैव ऑलरेडी ऑप्शन
तो ये सब it all depends on you how you are receiving. As Gil sir said rightly कि it's an opportunity, not a confusion. तो आप selecting a guru, ये आपके ऊपर है. आपको मतलब you just see एक chapter देख लेना. So after the completion of that chapter, आपका frequency, आपका pace, so match हो रहा है. Then you try to solve the questions from that particular chapter. If everything goes well, then you can stick on rather than wasting time. So yeah, that's it. और बाकी फ्रीक्वेंसी जिससे मैच हो जाए वो तुम्हारा गुरु बन जाएगा. मतलब इसमें एक पॉइंट ऐड करूंगा मैं आकाश सर. खासतौर से जो प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं बच्चे, जैसे सर ने बताया, मैं भी थर्मल पढ़ा रहा हूँ, आकाश भी पढ़ा रहा है, गिल सर भी पढ़ा रहे हैं. नो डाउट आप सभी अच्छे हैं, ये चीज दिमाग में बैठा लो. ये इंडिया के बेस्ट ब्रेन्स हैं जो अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं. एक पॉइंट बस आपको समझना है. देखिए हमारे इस अनअकैडमी में कोडिंग सिस्टम है, और ये बहुत ट्रूली बात कर रहा हूँ मैं, तो वो शायद गाइडिंग के लिए हम लोग करवाते हैं जो भी XYZ. तो बच्चे आते हैं सबसे पहले वो कंफ्यूज हो जाते हैं. होता क्या है आकाश सर, जो पर्सनली आज ही मेरे साथ हुआ है एक क्लास में, कि फॉर एग्जांपल बैचेस में जब बैच कोर्सेज जब चलते हैं तो अब 6 फैकल्टी एक साथ पढ़ा रहे हैं. एक बच्चा मेरे बैच में मेरी क्लास में आया, फिर गिल सर की में गया, फिर प्रवीण सर की में गया, आकाश सर की में गया, किसी और सर की में गया. अब टीचिंग सबकी सही है, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन हर बंदा गाइड अपने एक्सपीरियंस से करता है, अपने हिसाब से करता है. हो सकता है मैं बच्चे को बोलूंगा कि भाई टेस्ट तू शॉर्ट नोट इस टाइम पे बनी हो, ऐसे करियो, टेस्ट सीरीज अब दियो या बाद में दियो. मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है. प्रवीण सर हो सकता है बोले कि नहीं भाई तू पहले ये काम करियो, बाद में ये काम करियो. आकाश भाई अपना अलग बोल सकते हैं, गिल सर अपना अलग बोल सकते हैं. पढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं पर्सनल गाइडिंग की बात कर रहा हूँ, पर्सनल गाइडिंग की बात कर रहा हूँ. पढ़ाने में तो सभी बेस्ट है, नो डाउट. मैं बात कर रहा हूँ जब पर्सनल मेंटरशिप की बात आती है कि हाँ भाई तुझे इस टाइम पे नोट्स बना लेने चाहिए, तुझे इस टाइम पे कर लेना चाहिए, तो वहां थोड़ा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है. क्योंकि आकाश की बात सुनी, वो बोला अच्छा आकाश सर ऐसा बोल, फिर वो मेरी क्लास में आ गया, मैंने मान लो अपोजिट ही बोल दिया. यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है. तो लिसन माय डियर स्टूडेंट्स, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ. पढ़ाने में सभी एक से बढ़ के एक हैं. मैं बात कर रहा हूँ पर्सनल मेंटरशिप की. जैसे आकाश ने पूछा गुरु किससे बनाना है, तो इसमें आप एक काम करिए, इसमें आप पढ़िए सबसे, नो डाउट सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट सबसे पढ़िए. गुरु समझ रहा हूँ ना, जिससे आपको पर्सनल मेंटरशिप लेनी है, जिनकी आप बात को बिलीव करें कि नहीं भाई प्रवीण सर ने बोला है कि मुझे नोट्स दिन में बना लेने चाहिए, तो दिन में बना लेने दो. फिर उसमें चूं चपाट नहीं, वो फिर बिलीफ सिस्टम मजबूत करना पड़ेगा आपको किसी एक बंदे के ऊपर. वरना पता हुआ क्या, प्रवीण सर की बात सुन ली, वो भी आपको अच्छी लग रही है, आपने प्रवीण सर के हिसाब से 1 महीने फॉलो कर लिया. मान लो आप 1 महीना मेरे वीडियो में आए, मैंने प्रवीण सर का जैसा अपोजिट बोल दिया कुछ, अब वो भी बात आपको सही लगने लगी, और ये गौरव सर भी सही बोल रहे हैं. वहां गड़बड़ हो जाएगी बेटा, वहां बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी. इसलिए अपने मेंटर पे बिलीव होना बहुत जरूरी है. चाहे वो आकाश सर आपको मेंटर कर रहे हो, गिल सर कर रहे हो, प्रवीण सर कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ. बात समझ पा रहे हैं? पढ़ा तो सब अच्छा रहे, पढ़ाने की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जब मेंटरशिप की बात आती है, उसमें थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि बच्चे थोड़ा जरूर डिगमगा रहे हैं. तो मेरा सजेशन पर्सनल ये है, एक गुरु ऐसा बनाइए जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है. किस लिए? पढ़ने के लिए नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सोम के लिए नहीं, थर्मल के लिए नहीं, पर्सनल मेंटरशिप के लिए कि सर मैं ये फील कर रहा हूँ, मैं लो फील कर रहा हूँ, सर मैं क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू. उसके लिए बेटा एक गुरु होना बहुत आवश्यक है. हर किसी की लाइफ में गुरु होता है, वो आप बनाइए बेटा, तो उससे क्या होगा, कंफ्यूजन कभी नहीं आएंगे. बाकी ओवर टू आकाश सर, मतलब काफी मेरी बातें कर दी हैं. चलो अब इस बात पे मतलब सेशन की थोड़ी सी एंडिंग टाइप में भी जा रहा हूँ. तो सबसे लास्ट में कुछ टिप्स, छोटी छोटी टिप्स जो बच्चों को आपको बतानी है, प्लस नेविगेट के लिए एनरोलमेंट जरूर कर लें. तो इसके बारे में भी अगर आपको कुछ गाइडेंस देनी है बच्चों को तो आप जरूर बता दीजिएगा. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द कुलकर्णी सर, देन गिल सर एंड देन गौरव बाबू सर, देन we'll finish the session. See, this navigate, this test is conducted on 23rd of May, this coming Sunday. So the test is from 11 a.m. It is of 90 minutes duration, 11 a.m. to 12:30. So 90 minutes and you have 45 questions. So each question you can divide average 2 minutes. So 20 questions are of mathematics, are from aptitude mathematics. Then remaining 25 are technical, that is mechanical engineering. But these 25 questions are basic, basics, core subjects like fluid, thermal, SOM, production. Yeah. So you can take this question and you have wonderful opportunity to meet one of the top personalities. So, and you have got a scholarship worth 5 crores. So definitely you have got now 3 to 4 days. आप sincerely prepare कीजिए. So we all are there to guide you. We all are there.
So definitely will guide you, and it is a big pool of wonderful experience and terrific experience. I'm not just saying experience. Experience का मतलब not just years of teaching. मतलब जो कम टाइम में many exams clear किए, that experience. So it's not easy to clear examinations in short span. So all of us, we have cleared most of the examinations that we are teaching you people. So definitely ये जो experience आप, I think you can use it very effectively. And please, I request you to take up the test which is coming on this Sunday. And all the best. Stay home, stay safe. Wish you all the good luck. And finally, from my side, the only thing that I tell is the one who is not enjoying the process of preparation. I repeat, the one who is not enjoying the process of preparation, he'll never succeed. So आप ये process को enjoy करो. When you are preparing, you love your preparation. आप notes prepare करना, wonderful color जो भी है, color pen से, मतलब a thing of beauty is joy forever. If you are preparing wonderful notes, you will be seeing those notes continuously. When you see them continuously, it will be printed in minds. So revision का time भी कम हो जाएगा. So please enjoy the process and love your preparation. So all the best. I wish you all the best from the bottom of my heart. Thank you. God bless you. Thank you, sir. Gil sir. Again, main चीजें तो कुलकर्णी सर ने बोल दिया है. नेविगेट के थ्रू स्पेशली वो एस्पिरेंट्स जिनको लगता है वो फाइनेंशियली वीक है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स का फोन आता है, सर वी कैन नॉट पे 20,000 25,000 जो हमारा सब्सक्रिप्शन अमाउंट है. सो उनके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है. 5 करोड़ वर्थ का स्कॉलरशिप है. अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं, आप इस टेस्ट को जरूर ट्राई करें, क्योंकि अगर आपको एक प्लस सब्सक्रिप्शन मिलता है तो आपकी प्रिपरेशन को ऑल टुगेदर एक डिफरेंट डायरेक्शन मिलेगा, जहां पे आपको सारे टॉप एजुकेटर्स प्लस पे मिलेंगे, उस पे सारे आपको गाइडेंस मिलेगा. सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स जो फाइनेंशियली वीक हैं. अपार्ट फ्रॉम दोज एस्पिरेंट्स जो रिपीटर्स हैं या आप कहीं भी तैयारी कर भी रहे हैं, तब भी मैं स्टूडेंट से कहूंगा कि आप इस टेस्ट को जरूर दें, क्योंकि उससे फायदा क्या होगा कि अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो कुछ एक सब्जेक्ट अनअकैडमी का ऐसा है जो यूनिक है, थ्रू आउट इंडिया आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको अनअकैडमी ही आना पड़ेगा. सो मैं उन जो एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, कहीं भी प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप नेविगेट जरूर लिखो, क्योंकि अगर आप नेविगेट से आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलता है तो आपको रियली, जैसे सर कुलकर्णी सर ने शुरुआत में बोला था कि जो हमारा स्पेशली मैकेनिकल का टीम है, उसमें बहुत सारे ऐसे कोर्सेज, बहुत सारे ऐसे हमारे टीचर्स हैं जिनका कोर्सेज आपको अनअकैडमी पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा. तो मेरा हर एस्पिरेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आप नेविगेट में पार्टिसिपेट करें. ये एक आपके पास आपके लिए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है, जहां पे आपको स्कॉलरशिप के थ्रू आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिल सकता है. ऑल द बेस्ट. गौरव सर. बस सर, मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो प्रवीण सर और गिल सर ने क्लियर कर दी हैं. बस बच्चों को बेस्ट विशेस दूंगा मैं फॉर द 23rd. डेट को बेटा मार्क कर लो, और बिलीव मी काफी इजी क्वेश्चन आने वाला है, और इसको अटेम्प्ट करिए आप लोग, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं. हम लोग चाहते हैं कि हमारे इंडिया के बच्चे आगे बढ़े. तो इस पेंडेमिक में एक तरह की हेल्प है अनअकैडमी की तरफ से आप लोगों के लिए दोस्तों. हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में आप लोग आओ और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा पाए. ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू आकाश सर, प्रवीण सर एंड गिल सर. Thank you everyone. We are finishing the session by ending this note. और मैं बाकी सब बच्चों को अपनी तरफ से बस यही बोल सकता हूँ कि बेस्ट ऑफ लक इस एग्जाम के लिए, नेविगेट के लिए बेस्ट ऑफ लक. स्कॉलरशिप के 5 करोड़ वैसे मत देखो, ये देखो कि उसमें आपको एक बेनिफिट होगा. यानी 5 करोड़ का बोनस नहीं लगने वाला है. कई लोग तो उसमें लिख रहे हैं 5 करोड़ मिलेंगे. 5 करोड़ नहीं, बेसिकली आपको एक मतलब बेसिकली आपको जो ये आपको एजुकेशन का एक सबसे जो अच्छी प्लेटफॉर्म है ना, उस प्लेटफॉर्म की आपको बेसिकली सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी ऑलमोस्ट फ्री, या फिर उसमें बहुत सारे और भी प्राइजेस रहेंगे विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन जर्नी. एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है हमारी प्रिपरेशन में वो यही होती है कि आपको एक अच्छा गुरु मिले, एक अच्छी मतलब नॉलेज मिले, एक अच्छी गाइडेंस मिले, ताकि आप पूरे टाइम मोटिवेट रहो. और जैसे कुलकर्णी सर ने बोला, वो प्रिपरेशन की जर्नी बड़ी अच्छी, सुकून वाली और अच्छी लगे और ब्यूटीफुल लगे, वो स्ट्रेस ना लगे. तो इसी चीज पे मैं सेशन को एंड करता हूँ. थैंक यू एवरीवन. ठीक है, थैंक यू कुलकर्णी सर, थैंक यू गिल सर, थैंक यू गौरव बाबू सर. We'll try to conduct like this kind of session, more session, जहाँ पर हम थोड़ा better motivation किसी एक अच्छे टॉपिक को लेके आए, और ट्राई करेंगे हम दोबारा से सेशन पे आने का इसी चैनल पे. ठीक है, थैंक यू everyone, thank you everyone. Bye.